Hello guys, welcome to this YouTube channel. And this channel, I am starting with the CS Professional Program new course. And today I am going to start with Module 3 of CS Professional course. Module 3, Paper 7, Corporate Funding, Listing in Stock Exchange. See, basically this chapter this subject I have chosen on priority because there has been a lot of confusion and randomly people are asking for the videos on same. So this video will basically help people to cover the entire module. See, course is vast, but yes, we know that this subject can be a very scoring subject in the sense that yes, you just need to learn the provisions, you just need to learn the regulations and all, and that's it. You are ready for your go. So this is basically a subject which is of 100-mark paper of corporate CS professional program, whereby it has been bifurcated into two parts, namely corporate funding. Let me calm down. And basically I am using this module I can provide people with my own notes, but I prefer to make the video through the module of institute, and it is available in the site of institute. You can go and easily download it from there. My module, the module which are available on institute site is I guess December 2019 or January 2019 edition, that is the latest edition. But if you have December 2018 wala module also, that also is okay, because not much changes have been made over here. Now, this program, this course subject is bifurcated into two parts here, that you can see. Part 1, which deals in corporate funding, that comprises of 60 marks, and part 2 that comprises of 40 marks, but listing. But when we come about the second part of the module, that is listing, that basically is a short. You can easily get the short 40 marks of yours just by learning the provisions, because it's basically written provisions, and you just need to know the principles, what are the steps, what are the requirements, what are the regulations, what regulation says about anything to list itself is covered in listing. Now, corporate funding, the first part of the module, comprises of various modes through which any corporate or body corporate, any company, entity can raise funds. So we'll take up corporate funding in later lectures of ours, but let's start with part 2. Okay, I am moving. Part 2 basically starts from chapter number 13. Scroll down, chapter 13. Yeah. Now guys, all you need to do when watching this lectures of mine is you just need to consciously read. You need not mug up the things, because when you read consciously, you'll find that yes, these are because this basically listing part of us is basically the practicality of SEBI. So when you will be listening it consciously, you yourself have to question and you'll get the idea. So mugging up won't help, because there is a vast like exhaustive list of everything which you can't, like, it's not possible to mug up everything in a go. But yes, consciously reading it and following everything will help. Fine. So let's start. Chapter 13, listing in Indian Stock Exchange. This chapter basically says what? Introductory part, when and how it came in. Now, a lot of time, a lot of people might have heard that SEBI has issued its listing obligations. LODR है, LODR नाम से ही लोग सुन के कि बहुत सारे regulations हैं LODR के. तो क्या है ये LODR?
तो सेबी ने इन द अर्ज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर और ये सब चीज़ें थोड़ा सा इजी गो में जाएं और सिंप्लीफाई कर दे एक लिस्टिंग की प्रोसेस को. लिस्टिंग, आई गेस यू पीपल माइट बी नोइंग, व्हेन यू गेट योर सिक्योरिटीज, योर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज listed with recognized stock exchange, तो SEBI का रोल आता है whereby now you are ready, whereby it is an insurity that you are ready to deal with public at large. तो SEBI wide its notification dated, just a moment guys, SEBI wide its notification dated 2nd September 2015 has notified the SEBI LODR, that is Listing Obligation Disclosure Requirements Regulation 2015, also known as listing regulations, and these regulations become effective from December 1st 2015. SEBI has notified the simplified listing agreement to be executed by companies proposing to list securities. The said agreement is to be signed by the entity and the exchange on which the securities are proposed to be listed. तो ये जो agreement है, ये कौन sign करेगा? वो entity जो अपने आप को list कराना चाहती है और वो exchange जिस प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को लिस्ट कराना चाहते हो, उनके बीच में ये अग्रीमेंट एंटर होगा. Now SEBI listing regulation is a good mix of principles and rules based regulations. तो basically जो भी listing में आप अभी पढ़ोगे, तो what it basically comprises of lots of principles to learn, and yes, some rules and regulations to be remembered. Now SEBI regulation also states that in case of any ambiguity or incongruity between principle and relevant regulations, the principle will prevail. Now what it is saying here is, इफ़ सपोज अगर कभी ऐसे कोई कन्फ्यूजन अराइज होती है कि कोई रेगुलेशन पे, सेबी ने कोई रेगुलेशन बनाया है यहाँ और उसी पे ही कोई प्रिंसिपल भी है, तो अगर इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो क्या प्रिवेल करेगा? द प्रिंसिपल्स विल प्रिवेल. Fine. So that's why when I was reading over here, I told that you have to learn the principle by heart, because you need to know the principle to know where which thing will prevail, what is more important to give the priority. Now next we move on, like the listing regulation was therefore notified with twin objectives. तो ये जो regulation notify किए सेबी ने, वो किस objective से किए? First objective, having a single listing agreement, and second, ensure greater regulatory enforceability. So the first reason that is कि अगर सबके same listing agreement होंगे, तो हमको नहीं लगता क्या कि easy, कितना ease हो जाएगा हमको agreement पढ़ने में. अब हर कोई अपने तरीके से अपनी language में, now you yourself know कि हम आपको बोलते हैं एक agreement बनाने, तो आप कितने variety उसमें कितना बढ़िया, like you can make up what not. So similarly every person can put in their own creativity and everyone will end up like nothing. So to bring a single list so that everybody has a single listing agreement, and एक regulatory enforceability आ गई. अब क्योंकि सेबी ने इसको notify कर दिया है ना, तो ये एक legal, इसको एक legal backing मिल गई है. Fine. Now next is, let's see the applicability of this regulation. These regulations shall apply to the listing entity who has listed any of the following designated securities on the recognized stock exchange. Now this is applicable on, if people are watching this lecture after having a go through of the first part of this entire subject, that is corporate funding. So whatever chapters you have read over there, this applicability of listing applies on all those chapters that you have read in part A. You might have read about the non-convertible debentures, you might have read about non-convertible redeemable preference shares, then perpetual debts, perpetual non-convertible redeemable preference shares. Then in the foreign listing next that we'll be coming around, then you might have heard about ADRs, GDRs. So here Indian depository receipts, IDRs have been covered. Now securitization, just a chapter number 12 prior to this chapter is securitization. So this securitized debt instruments have been covered. Then security receipts, then it's also cover units issued on mutual fund,
and then a specified security listed on main board or SME exchange or institutional trading platform. So we'll be coming like each term that you are, if you haven't read in part A, not a problem, we'll be coming through each term in detail coming upward, and any other securities as may be specified by SEBI. Now let's go, what is the, just a minute. Now starting with what is, now the starting of the video you have been hearing listing of stock, listing of securities, listing on the stock exchange. So what does a listed entity means? So according to section 2 or subsection 52 of the Companies Act 2013, listed entity means a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange. Very simple definition, आप वर्ड्स को ही तो तोड़ के बोल सकते हो लिस्टेड एंटिटी क्या है, तो कोई भी कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटीज़ को कोई भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया हो उसको हम कहेंगे लिस्टेड एंटिटी. Coming up next is the another definition that according to SEBI listing regulation 2015, listed entity means an entity which has listed on a recognized stock exchange or exchanges the designated securities issued by it or designated securities issued under scheme managed by it in accordance with the listing agreement entered into between the entity and the recognized stock exchange. So you see this definition makes more sense, in sense that it has elaborated each and every dimension of the term. तो यहाँ आपके हिसाब से क्या बोला उनने? लिस्टेड एंटिटी वो एंटिटी है जो अपने आपको लिस्ट अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा रही है ऑन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा. बट आगे जो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कर रही है सेबी, द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द एंटिटी एंड डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ इशूड अंडर द स्कीम मैनेज्ड बाय इट इन अकॉर्डेंस विद जो भी एंटिटी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है उसको मैनेज कर रही है किसी स्कीम के तहत, उसका एक लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर होगा बिटवीन एंटिटी एंड द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़. सी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ भी हर्ड अ टर्म की जो उनकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी है उस पर डील कर रही है, उसे मैनेज कर रही है एंटिटीज़. तो वो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? पहला ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ मीन्स, देखो सिक्योरिटीज़ में दो ही चीज़ का वर्ड है इधर पे, अपन ने जो ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी भी पढ़ी, इफ़ यू क्लासीफाई देन यू कैन term the specified security as equity shares and convertible securities. That's it. फाइन. नॉन कन्वर्टेबल डेट्स, अब देखो ऊपर जो हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी उसमें हमने देखा कि NCDs थे, NCRPs थी, परपेचुअल डेट्स थे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स थी, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिक्योरिटी रिसिट्स थी, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स थे. तो ये जो इतने सिक्योरिटीज़ जिनमें अप्लाई कर रहे हो, जिन पे एप्लीकेबिलिटी है लिस्टिंग की, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है. तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जहाँ हमने पढ़ा था, आई टेक यू दिस, यस, एनी अदर सिक्योरिटीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी. ये चीज़ तो हुई फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी भी थी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की. हाँ, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में अपन बहुत चीज़ें कवर कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज़ कवर्ड ओवर हियर. यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें इक्विटी शेयर्स हैं एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं. फिर नेक्स्ट हमने एक चीज़ पढ़ी थी NCDs, NCRPs, perpetual debts, perpetual NCRPs. Now let's see what are these. NCDs, non-convertible debt securities, non-convertible debt securities, which is debt security as defined under regulation 21E and okay. तो basically जो भी debt securities हैं उन्हें NCDs कहते हैं. Debt securities, I hope you people know, debentures, जो हमारी डेट वाली सिक्योरिटीज़ हुई जैसे डिबेंचर्स आर द डेट सिक्योरिटीज़. नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो व्हाट डज दिस मीन्स? शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड बाय देम. Okay, जो भी इस these definitions you can just go in because every time they are going to tell the same thing as assigned by as meaning as assigned by SEBI, meaning as assigned by SEBI. So it has an exhaustive list which you need not learn, I guess. So now basically the main part, this is the, I should say this is the essence of the entire chapter, and the time you have the entire control over this section of the chapter, you have mastered the listing in Indian Stock Exchange wala entire lesson, chapter 13 wala, lesson 13. Now
From here till now I haven't said anything that you have to mug up, that you have to learn by heart, but here every regulation that we'll be going through, you have to learn the regulation number as well as the name of the regulation, and what is basically covered in that. That will be like, I won't be saying that you can remember it word by word, but yes, in the spirit what the principal wants to say, वो आपको याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या समझाना चाह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मार्क करो आप इम्पोर्टेंट. ठीक है, rather mark it very important. Principles under the listing obligation and disclosure requirement regulation 2015. यहाँ पे जो भी इंटायर प्रिंसिपल्स है ना, उनको 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में बाइफिकेट किया जा सकता है. ठीक है, अब हम भी अगर किसी भी प्रिंसिपल्स को बनाना चाहेंगे तो हमें पहले उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना. ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते कि ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल. तो हमने इसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी. सेकेंड, ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The principle governing, now basis, on the basis of disclosure, we'll take one by one what each of the basis means and what all covered under that particular basis. First is disclosure and transparency. So now, principle governing disclosures, you need to learn the regulation. I have already mentioned. Now might not be possible, there are approximately 41 regulations in this under this entire chapter, so it won't be possible practically to learn all 41. At the end of when we'll finish up with all the principles, I'll make you mark the important regulations that you need to learn. I don't know how it would be becoming possible, but yes, while reading only you'll get that. As I'm going to question you will be able to recognize which regulation we are talking about. So just consciously and concentratedly, focusedly listen and read. Fine. Now, regulation 4 of 1, principle governing disclosures. The listed entity shall abide by the following principles while making disclosures to the stock exchange or its websites or through any other medium. जब भी कोई भी एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो उसमें ना रिक्वायरमेंट होता है कि वो सारे डिस्क्लोजर्स करे. ठीक है, वो डिस्क्लोजर चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज को कर सकती है, अपनी वेबसाइट को करे, या कोई भी मीडियम के थ्रू वो पब्लिक एट लार्ज को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही है, तो वो उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते वक्त क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिंसिपल्स बेसिकली फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. तो यहाँ पे यू नीड टू राइट, लाइक यू कैन, आई डोंट हैव. Yes, guys. Now, principle governing disclosures. As we were saying, कि first point I am going to tell. I should say कि जो भी एक important click word होना चाहिए, जो आपको याद हो, छोटे छोटे words that you can write over here. This place provided over here, so that you can just in a summary view you can gauge ki what the entire statement, that point says. Now, information shall be prepared and disclosed in accordance with applicable standards of accounts and of accounting and financial disclosure. So this basically means that you have to abide by the accounting standards. So you can write AS in this corner, which will remind you that yes, accounting standards have to be complied while disclosing, while making any financial disclosure. You have to ensure that आपने accounting standards के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर किनको नहीं पता है, तो जैसे आप सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ा होगा आपने अपने मॉड्यूल 1 में कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 2, ऐसे ही अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वे बाय स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग 1, 2, बेसिकली इन दैट फॉर्म. Second point is the listed entity shall implement the prescribed accounting standards in letter and spirit in the preparation of financial statements, taking into consideration the interest of all stakeholders, and also ensure that the audit
that the annual audit is conducted by independent, competent and qualified auditor. So here it basically is focusing कि जो भी आप करें, मतलब जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हैं, जो भी आप फिनेंशियल डिस्क्लोजर या कोई भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं, उसमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेटर एंड स्पिरिट में प्रिपेयर किया है. नाउ व्हाट डज लेटर एंड स्पिरिट मीन्स कि लेटर मीन्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग द लॉ, कि लॉ कह रहा है इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है, मन नहीं है हमारा या फिर ऐसे, उसको कहते हैं लेटर में करना. बट लेटर एंड स्पिरिट यानी कि सिर्फ वर्ड से नहीं, आप उसे एक्चुअली थ्रू लाइक from the bottom of your heart you are actually also happy to follow those things and you are इतना इच्छा भी है आपकी, ठीक है, सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहे ऐसा करने, बट हम इच्छा से भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट करिए कि जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो लेटर एंड स्पिरिट में होगा. फिर नेक्स्ट इज द लिस्टेड एंटिटी शैल refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to recognized stock exchange and investors are not misleading. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हो वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मिसलीडिंग नहीं हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन ना डालें. आप रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भी दे रहे हैं अगर आप, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दें जो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाए या फिर मिसलीडिंग हो. तो यहाँ पे आप मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर नो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉट मिसलीडिंग टू इन्वेस्टर्स या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं. The listed entity shall provide adequate and timely information to recognized stock exchange and investors. हाँ, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसका एडिक्वेट होना, यानी जैसा मांगा गया है उतना सही इन्फॉर्मेशन देना और टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, दोनों ही बातें ज़रूरी हैं. तो यहाँ एडिक्वेट एंड टाइमली. फिफ्थ, listed entity shall ensure that dissemination made under provisions of these regulations and circulars made thereunder are adequate, accurate, explicit, timely and presented in simple language. So dissemination means जो भी आप information share कर रहे हैं या जो भी आप information circulate कर रहे हैं, हाँ, तो वो जो आप कर रहे हैं वो adequate हो, वो तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, adequate हो, accurate हो, ठीक है, सही हो, पर्याप्त हो, सही हो, एक्सप्लिसिट हो, जो बोला गया है वो हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड हो, हाँ, फिर टाइमली दी जाए और सिंपल लैंग्वेज में दी जाए. ऐसा नहीं कि जनरल पब्लिक, जनरल इन्वेस्टर्स, पब्लिक एट लार्ज उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं. फिर चैनल्स फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन शैल प्रोवाइड फॉर इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस. यहाँ पे आप एक्सेस वर्ड लिख सकते हैं, एफिशिएंट एक्सेस या ईजी एक्सेस टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय इन्वेस्टर्स. तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन दें वो इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस होनी चाहिए, जिस भी चैनल के माध्यम से दें आप. The listed entity shall abide by all the provisions of the applicable laws, including the securities laws and also such other guidelines as may be issued from time to time. So this is basically a residuary provision that is they have provided कि जो कुछ बच गया होना तो इसमें covered हो जाएगा वो बाद में. फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स पे होना चाहिए, जो भी आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन जो भी आप कर रहे हैं वो सारे कंसिडर करिए, कैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करते हुए दीजिए. फिर फाइलिंग रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विच आर इवेंट बेस्ड एंड आर फाइल्ड पीरियडिकली शैल कंटेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. तो जो भी आप फाइलिंग कर रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, स्टेटमेंट्स दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, वो सारे पीरियडिकली फाइल करना चाहिए आपको. ये नहीं कि कर रहे अपनी मर्जी से जब सोए जागे, जब मन हो रहा है तब फाइल कर देंगे, नहीं, जिस समय में जिस की रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लायंस के करते हुए आपको उसे डिस्क्लोज करना चाहिए. फिर पीरियडिक फाइलिंग रिपोर्ट्स, statements, documents and information report shall contain information that shall enable investors to track the performance of listed entity over regular intervals of time and shall provide sufficient information to enable investors to access the current status of a listed entity. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आप फाइलिंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स को ट्रैक कर पाए, ऐसी जगह पे फाइल करिए जो इन्वेस्टर्स ट्रैक कर पाए. नाउ फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर्स करना था, वो था रेगुलेशन 4/1. नाउ सेकेंड है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो let's see the second basis. The listed entity which have listed its specified security shall comply with the corporate governance provisions as specified in chapter 4, which shall be implemented in manner so as to achieve the objectives of the principle as mentioned below.
इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव किस में कैसे है, इसको अपने मल्टीपल पार्ट्स में देखना है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर किस किस को ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या प्रिंसिपल ये किन के लिए है, क्या क्या गवर्न करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन 2 और 4 है वो मल्टीपल पार्ट्स सब पार्ट्स में मिलेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्निंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी बात की है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन की भी बात की है। तो इसमें बहुत मतलब ऑब्वियस बात है कि इसके पार्ट्स में इनको बहुत सी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ वेरी वाइड टर्म, ठीक है ना। तो व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस देयर आर लॉट मैनी एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू सी इनटू, लाइक व्हाट इज़ द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बोर्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ stakeholders the entity possesses, and then a lot more things to see. First part is the right of the shareholders. The listed entity shall seek to protect and facilitate the exercise of following rights of shareholders. First, right to participate. अब यहाँ पे देखो शेयर होल्डर्स के राइट हम पढ़ते नहीं हैं, सपोज अभी हम इसको पढ़ते नहीं हैं, हम यही सोचते हैं कि राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होंगे। तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें एक बारी, क्या क्या होगा शेयर होल्डर, अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी एंटिटी के, तो आप क्या क्या राइट्स प्रोसेस करने या फिर क्या क्या चाहेंगे एक एंटिटी से। तो आप क्या चाहेंगे कि आपको एक क्या हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करने का वो मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आप ये चाहेंगे कि अगर कोई बड़े डिसीजन हो रहे हैं तो उस डिसीजन में आपका से हो, ठीक है। कोई भी अगर चीज़ हो रही है तो उसको एक इक्वालिटी से सब जगह मतलब सबको बताया जाए, सबको पता हो कि क्या डिसीजन हो रहे हैं। सी बेसिकली हु इज़ सीइंग द डे टू डे वर्किंग ऑफ द एंटिटी, डायरेक्टर्स आर सीइंग। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है तो कहाँ लगा है, कैसे यूज़ हो रहा है, तो उनको क्यूरियोसिटी रहेगी कि कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चाहते हैं राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में, वो क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड टू बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेट तो करने मिलना ही चाहिए, प्लस सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड ऑफ डिसीजंस कंसर्निंग फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस। अगर जो भी फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस यानी कि ऐसे चेंजेस आप कर रहे हैं जिससे कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो सकता है, फंडामेंटल्स यानी कि कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप इनको इन्फॉर्म करिए, प्लस उनका पार्टिसिपेशन लीजिए। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग। उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो वोट करें शेयर होल्डर्स मीटिंग में। थर्ड, बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ रूल्स इंक्लूडिंग वोटिंग प्रोसीजर्स दैट गवर्न जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि जो भी जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग हो रही है उसके क्या वोटिंग प्रोसीजर होगा, उसमें आप क्या करने वाले हो, कब होने वाली है, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू प्लेस आइटम्स ऑन द एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग एंड टू प्रपोज रेजोल्यूशंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिट्स। यहाँ पे उनने हर चीज़ के लिए मांग कर ली है, मतलब एक तरह से उन्हें बोला है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्वेश्चन कर सकें। ऑब्वियसली बात है, कोई अपना पैसा लगा रहा है तो वो चाहेगा कि मैं क्वेश्चन कर सकूँ कि कहाँ पैसा लगाया है या किस तरह से आपने यूटिलाइजेशन किया है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ टू प्लेस आइटम्स ऑन एजेंडाज ऑफ जनरल मीटिंग, अगर वो कुछ बताना चाह रहे हैं हाँ कि ये चीज़, ये वाला मैटर, ये इशू डिस्कस होना चाहिए, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आइटम अपने जनरल मीटिंग के एजेंडा में दे सकें। फिर रेजोल्यूशन अगर कोई प्रपोज करना चाहते हैं, मीन्स ऑब्वियसली पास होना या फेल होना दैट्स अ सेपरेट इशू, बट अगर वो चाहते हैं कि ऑन द टेबल ऑफ द मीटिंग कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहें तो वो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू, कोई भी चीज़ हद के बाहर नहीं होगी तो सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस। फिफ्थ, effective shareholding participation in key corporate governance decision such as nomination and election of members of the board of directors। यहाँ पे बेसिकली जो हमने, अगर आपने पढ़ा है कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है ना, वो कमेटी भी बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इलेक्ट करते हैं ना, उन्हीं में से इलेक्ट होते हैं, और जो आपके डायरेक्टर्स हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। तो वो वही बोल रहे हैं कि जो भी ये कमेटी बने उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का राइट मिलना चाहिए। फिर एक्सरसाइज ऑफ ओनरशिप राइट्स बाय ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओनरशिप राइट्स
होने का मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ शेयर्स होल्ड करती हूँ या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो आपके पास वो ओनरशिप भी है। अगर आप कुछ ओन कर रहे हो तो उसको वो एक्सरसाइज करना चाहिए। यानी अगर कोई चीज़ शेयर होल्डर हूँ तो मुझे ओनरशिप फील कब होगी, जब उससे अटैच्ड राइट्स, उससे अटैच्ड जो भी बेनिफिट्स हैं वो मुझे मिले, तो वो बेनिफिट्स उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। ये अभी हम किस चीज़ के अंडर डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ये राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर हमने पढ़ा था ना पार्ट ए, ये इनको थोड़ा सा आई गेस प्रिंटिंग में थोड़ा नेक्स्ट लाइन में आके इसको थोड़ा प्रॉपरली होता, बट इट्स ओके, ये पार्ट ए चल रहा है अभी, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड सेवेंथ, एडिक्वेट मैकेनिज्म टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर लास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम अब्यूसिव एक्शंस बाय or in the interest of controlling shareholders acting either directly or indirectly and effective means of redress। तो हमने तो इस प्रिंसिपल का स्टार्टिंग ही पढ़ा था क्या, कि ये प्रिंसिपल है गवर्निंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो वो लास्ट में तो ये चीज़ बोलेगा ही कि हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देनी है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन देनी है, उन्हें देना है अब्यूजिव एक्शंस बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एक्टिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्रेस। मतलब जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो मेजॉरिटी में शेयर होल्डर्स हैं, वो ऑब्वियसली कंट्रोल में ले रहे हैं ना अपने, तो उनके द्वारा ये अब्यूजिव एक्शंस इनके प्रति ना हो, उनके द्वारा इनके इंटरेस्ट कहीं मारे ना जाएं, उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करना है। Now part B, first हमने पढ़ा shareholders right, now second part is timely information. Listed entity shall provide adequate and timely information to shareholders including but not limited to the following। तो इधर पे फर्स्ट सफिशिएंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन देना है। तो सफिशिएंट एंड टाइमली का मतलब ही ये है कि जितना भी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किससे रिगार्डिंग, कंसर्निंग द डेट, location, agenda of general meeting, as well as full and timely information regarding the issues to be discussed at the meeting। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग के लिए या फिर जो भी इश्यूज डिस्कस होने वाले मीटिंग के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि बता दिया कि हाँ मीटिंग होनी है, इतने बजे होनी है, बस आ जाइएगा, नहीं, उसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दीजिए, जितनी रिक्वायर्ड है, कम से कम सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि समझ में आ जाए क्या मैटर्स हैं, और टाइमली दीजिए। ये नहीं कि अपने मन से 1 घंटे पहले दे दिया कि हाँ दे तो दी थी इन्फॉर्मेशन, नहीं, सफिशिएंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Now, capital structure and arrangement that enables certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership. What does this mean? See, capital structure and arrangement का जो भी है, आपकी एंटिटी का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कहाँ से पैसा लगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि आपने अपना पैसा लगाया, बोरो करके पैसा लगाया, या किसने कितना पैसा लगाया, वो जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर क्या क्या अरेंजमेंट करे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कहीं मर्जर है, कोई जॉइंट वेंचर है, या क्या चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग भी आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। राइट थर्ड, right attached to all series and class of shares which shall be disclosed to investors before they acquire shares। हाँ, ये चीज़ है कि देखो, सही बात बोली ना कि अगर आप कोई भी शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है ना, तो जब शेयर कोई भी बंदा शेयर्स एक्वायर कर रहा है, तो उससे रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स मिलने वाले हैं उस बंदे को पहले से बताओ ना। पता चला वो खरीदेगा, उसके बाद उसे पता लग रहा है कि इससे उसको ये मिलने वाला था, या ये नुकसान हो सकता था, या उसे वो कंपेयर नहीं कर पाए लेते वक्त क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस वाले को लेते तो क्या क्या फ़ायदे होते। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइमली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। नाउ पार्ट 3, till now 2 parts have been covered. First was right of shareholders, second was timely information, now third is equitable treatment। The listed entity shall ensure equitable treatment of all shareholders including minority and foreign shareholders in the following manner। तो वो बोल रहा क्या है कि देखो, अगर हमारी कंपनी है, ठीक है, और हम उसके ही ओनर हैं, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं खतरा कौन महसूस करेगा, जो माइनॉरिटी में होंगे या फिर जो बाहर से होगा। तो उनके राइट्स को, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले सारे शेयर होल्डर्स के प्रति,
तो अगर जैसे अंबानी जी की कंपनी है, ठीक है, तो इफ़ अंबानी जी इज़ द होल्डर, तो उनकी तो घर की कंपनी है, उनको तो राइट्स मिलेंगे ही, वो तो मेजर स्टेक होल्डर हैं, मतलब मेजर शेयर होल्डर हैं, उनके पास तो 41-51 इतना होल्डिंग कर रखेंगे वो अपनी कंपनी में। तो उनके अलावा जो बाकी हैं उनके राइट्स कहीं वायलेट ना हो, उनको कहीं दबाया ना जाए, वो कहीं डोमिनेट सप्रेसिव पोजीशन में ना रह जाएं, तो उनका ध्यान रखने के लिए क्या चाहिए? ऑल shareholders of the same series of a class shall be treated equally. जितने भी अगर पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स हैं, तो उससे रिगार्डिंग उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. Effective shareholders' participation is key in key corporate governance decisions such as nomination and election of members of board of directors shall be facilitated. Now, effective shareholders' participation यानी कि हर शेयर होल्डर का राइट है. देखो, आप आए ना आप आए बोर्ड मीटिंग में, इसका ये मतलब नहीं आप उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना. अगर वो शेयर होल्डर है, इवन इफ दे आर होल्डर्स ऑफ 1 शेयर्स, देन ऑल्सो दे आर द शेयर होल्डर फॉर द कंपनी. तो अगर एक शेयर होल्डर के लिए भी वो शेयर होल्डर है तो भी वो शेयर होल्डर हैं, उनको सारे राइट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग है या फिर जो मेजॉरिटीज़ में काउंट होते हैं. Now, third, if exercise of voting rights by foreign shareholders shall be facilitated. अगर फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी कंपनी को बिलोंग नहीं करते तो हम आपको वोटिंग राइट नहीं देंगे. उनने भी अपना पैसा लगाया है, तो समवेयर दे हैव ऑल्सो स्टेक देयर पर्सनल रिस्क ओवर देयर, सो यू हैव टू गिव इक्वल राइट्स. तो यहाँ पे जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात हुई, यहाँ पे उनको इक्वल वोटिंग राइट्स देने की वाली बात हो रही है. Now, next is the listed entity shall devise a framework to avoid insider trading and abusive self dealing. यहाँ पे जो लिस्टेड एंटिटी है, यहाँ पे उनको उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कंपनी के अंदर कोई भी इंसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कोई भी सेल्फ डीलिंग ना हो, यानी कि लोग अंदर ही अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि यार इतने में बिक रहा है, तुम इतने में खरीद लो. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इससे क्या है, पब्लिक एट लार्ज को आप कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं. तो ये चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? लिस्टेड एंटिटी की. Now, second last point, processes and procedures for general shareholder meeting shall allow for equitable treatment of all shareholders. Now, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो भी ये जो अपन बोल रहे हैं ना, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे शेयर होल्डर्स का, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? हर कंपनी, हर एंटिटी का अपना खुद का एक वो हो सकता है ना कि आप कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं. तो जो भी प्रोसेसेस हैं उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है या क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, वो कंपनी या एंटिटी पे डिपेंड करता है. प्रोसीजर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट मेक इट अनड्यूली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव टू कास्ट वोट. तो जो भी प्रोसीजर आप डिसाइड करें वो इतना एक्सटेंड में जाके ना करें कि जो बाकी हैं वो अपने आप ही गिव अप कर दें. क्यों? क्योंकि आप उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा रख रहे हो या फिर उनका आना जाना वो कहीं पे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो पा रहा हो. तो वो सारी चीज़ों को देखना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. नाउ वी हैव कवर्ड 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वॉज राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स, सेकेंड वॉज timely disclosures, and third was equitable treatment. Now this is the fourth part of disclosures on the basis of corporate governance. Now, role of stakeholders in corporate governance. Now this basically अभी तक हमने जो उसका सेकेंड पार्ट था माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, तो अभी तक के जो 3 पार्ट से आपने देखा वो बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे फोकस थे. अब जो फोर्थ पार्ट है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना. Now, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर्स की बात नहीं हुई है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात हुई है. अब तक हम सारी जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स, उनके प्रति एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर होल्डर्स की एंटिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात कर रहे थे. पर यहाँ पे अब स्टेक होल्डर्स को कवर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब हम वाइडर टर्म में डील कर रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. The listed entity shall recognize the rights of its stakeholder and encourage cooperation between listed entity and the stakeholders in the following manner. First, the listed entity shall respect the rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreement. तो सबसे पहली बात है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अच्छा बुरा कब सोचेंगे, पहले उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए. तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, लिस्टेड एंटिटी उनको रिस्पेक्ट करे. अब रिस्पेक्ट क्या करे? जी हुजूरी करे? नहीं, उनको
जो भी लॉ उनको पावर दे रहा है उस पर एटलीस्ट उसको उस लॉ के प्रति, उस लॉ के तहत रिकग्नाइज करिए, ठीक है। उनके साथ उसको अगर लॉ के तहत रिकग्नाइज कराना है तो ज़रूरी है अग्रीमेंट्स होना। जब आप कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट्स एंटर करेंगे तो आप उनको एक इज्जत दे रहे हैं, तब आप उनको एक अथॉरिटी दे रहे हैं अपनी एंटिटी में। Now next is stakeholders shall have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. Now they should have the opportunity, यहाँ पे सारी बातें स्टेक होल्डर्स की हो रही है, रिमेंबर दिस ना। तो स्टेक होल्डर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि अगर जो ऊपर हमने उनको बोला ना रिस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए, तो इज्जत कैसे दे रहे हैं हम उनको, कुछ राइट्स दे के। तो जब हम वो राइट्स दे रहे हैं, अब अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका वायलेशन होता है, तो उनके पास कोई ना कोई रिड्रेसल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कहाँ वो अपने ग्रीवियंसेस बताएं। तो उस चीज़ की जिम्मेदारी होती है एंटिटी की कि आप देखिए उस चीज़ को। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टेक होल्डर्स शैल हैव एक्सेस टू रेलिवेंट, सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन टाइमली एंड रेगुलर बेसिस टू एनेबल देम टू पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस। नाउ स्टेक होल्डर्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, चाहे वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो ऐसे नहीं कि 1 घंटे पहले बता दिया कि हाँ मीटिंग हुई थी या फिर होने वाली है, ऐसा नहीं। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए, फिर कोई रिलायबल सोर्स से आनी चाहिए और टाइमली उन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी जिम्मेदारी भी एंटिटी की होती है। Now, the listed entity shall devise an effective whistleblower mechanism enabling stakeholders, including individual employees and their representative bodies, to freely communicate their concerns about illegal and unethical practices. Now, whistleblower mechanism, ये आप अपने मॉड्यूल के फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा डिटेल्ड पढ़े होंगे, जहाँ आपने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई थी, तो वहाँ पे आपने विसल ब्लोअर्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि ये क्या करेंगे, कोई कुछ भी गलत होने वाला हो रहा है कंपनी में, इन्हें पता है, ये इनसाइडर्स भी होते हैं, कई बार आउटसाइडर्स भी होते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक होल्डर्स मीन्स कोई भी कवर हो सकता है, किसी को भी जिसे पता है कि कुछ गलत हो रहा है, हाँ, तो उनको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म के थ्रू ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कुछ वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है जिससे कंपनी को नुकसान है या कुछ भी ऐसा जो उनको फील होता है, एंड उसकी आइडेंटिटी अगर वो चाहते हैं तो वो हिडन भी रहती है और उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है, जैसी भी कंपनी या एंटिटी की पॉलिसी होगी। तो ये एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब एंटिटी में, ये भी लिस्टेड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। Now we are ended with 5 parts of this. No, now last part was, see, this disclosure and transparency, there is some printing error of the module. जहाँ हमने starting किया था उसमें ही हमने पढ़ा था disclosures and transparency. हमारा first part ही था disclosure and transparency. तो that D part or last part of second basis is just a repetition of that. So you can skip off this thing, right? So on the basis of disclosure and transparency, हम what was the regulation for this? Regulation was regulation 4, sub-regulation 1. Then on the basis of corporate governance and protection of minority shareholders, this was regulation 4 of 2. Now last part, the responsibilities of board of directors. Now before seeing the topic, now let's not go into the topic directly and let's see कि क्या होगा। ये तो बहुत ही क्वेश्चन, मतलब इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए कि डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। 4 of 3 ये एक एम्बिग्विटी वाला प्रोविज़न है दैट यू कैन स्किप, ठीक है ना। जो अब हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका कोई रेगुलेशन नंबर नहीं है एज सच, वो रेगुलेशन 4 of 2 के अंदर ही कवर कर दिया है मॉड्यूल में, ठीक है ना। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेपरेट रेगुलेशन फॉर दिस, ओके। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये रेगुलेशन है इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस ईजी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिस्क्लोजर्स करने हैं कंपनी के, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होना है तो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर्स की है। फिर और क्या डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है?
कि वो सारे भी जितने भी फंक्शनिंग हो रही है, कितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं, बजट्स बन रहे हैं, वो उसको मॉनिटर करे, उसको रिव्यू करे। फिर कोई भी अगर मैनेजरियल पर्सनस हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, उनकी रेम्यूनरेशंस या फिर उनसे रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस बन रहे हैं, कंपनसेटरी प्रोविजंस या फिर जो भी प्रोविजंस बने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, उनको मॉनिटर करें। ठीक है, फिर और क्या हो सकते हैं बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? चलिए देखते हैं इसमें। The board of directors of the listed entity shall have the following responsibilities. First, disclosure of information. Members of board of directors and key managerial person shall disclose to the board of directors whether they directly, indirectly or on behalf of third parties have a material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity. तो यहाँ पे बोल रहे कि जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं और जो की मैनेजरियल पर्सन्स हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स में कौन कौन कवर होते हैं? आपकी कंपनी के CEO, CFOs, MDs, CS भी इज पार्ट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। तो जो ये जो टॉप मैनेजमेंट, इनको अपन टॉप मैनेजमेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं ना, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करें क्या जो भी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट है अगर इनका, ठीक है, अगर इनका कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ले रही है उसमें कोई इंटरेस्ट है तो इनको डिस्क्लोज करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि अगर डायरेक्ट भी कोई इंटरेस्ट है तो भी बताएं और इनडायरेक्टली भी कोई इंटरेस्ट है उस थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग तो भी इनको बताना चाहिए। फिर The board of directors and senior management shall conduct themselves so as to meet the expectations of operational transparency to stakeholders while at the same time maintaining confidentiality of information in order to foster a culture of good decision making. अगर आपको कंपनी में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है ना, तो क्या होता है ना, आप किससे सीखते हैं? आप अपने बड़ों से सीखते हैं। तो कंपनी में भी आपके एम्प्लॉयज़ किससे सीखेंगे? जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उनसे सीखेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट ही जो पॉलिसीज़ हैं उनका कंडक्ट उनको फॉलो नहीं करेगा तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो नीचे हैं बाकी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो उन आपके रेगुलेशंस को इतनी रिस्पेक्ट देंगे या फिर वो उस चीज़ को इतना मेंटेन करेंगे। तो इधर पे भी इस चीज़ पे फॉलो करना भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, की फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ हियर ये वाले जो बाकी 8 to 9 पॉइंट्स हैं ये आप ऐसा वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद कर पाएंगे, बस एक रीड दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको जो भी सब पॉइंट बना सकते हैं या साइड में वी कैन सम अप द पॉइंट एंड यू कैन राइट डाउन सो दैट यू कैन जस्ट सीइंग द पॉइंट यू कैन एलैबोरेट की वर्ड्स यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन एलैबोरेट ऑन द सेम। लाइक फर्स्ट, रिव्यूइंग एंड गाइडिंग। नाउ रिव्यूइंग एंड गाइडिंग व्हाट ऑल? रिव्यू करना, आपको गाइड करना क्या? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मेजर प्लान्स, रिस्क पॉलिसीज, बजट्स, बिजनेस प्लान्स, सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो ओवरसीइंग मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कवर किया? बेसिकली क्योंकि ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना, छोटे मोटे खर्चे चलो इग्नोर कर सकते हैं पर जो मेजर हैं उन पे तो कम से कम आप रिव्यू करिए, ठीक है। फिर कोई भी अगर एक्विजिशन कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट हो रहा है, हाँ, तो ये मेजर डिसीजंस में कवर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए बोला गया ना की फंक्शंस हैं, है ना, ये करना ही करना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें आप भले डेलीगेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बट ये तो आपके अंडर होना चाहिए। फिर सेकंड में आप अंडरलाइन कर सकते हैं मॉनिटरिंग, वर्ड मॉनिटरिंग। अब क्या मॉनिटर करना है इसमें? आपको इफेक्टिवनेस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस मॉनिटर करना है कि जो भी एंटिटी की हर एक सेक्टर के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं उसका जो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, सारी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है या नहीं। पता चला आपने बना दिया, आपने तो बढ़िया एक ग्रेड की पॉलिसी बना दी, बट ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही तो आपकी मेहनत तो वेस्ट है। तो इसलिए उस चीज़ को मॉनिटर करिए। फिर थर्ड में आप अंडरलाइन कर सकते हैं सिलेक्टिंग and monitoring. Now what? Selecting, compensating, monitoring, when necessary, replacing key managerial person and overseeing succession planning.
तो यहाँ पे क्या है कि जो भी की मैनेजर, या रादर यू कैन राइट द की मैनेजरियल पर्सन एज द की पॉइंट सो दैट इट वुड बी ईजी टू एलैबोरेट फर्दर. तो की मैनेजरियल पर्सनल का क्या, उनका सिलेक्शन, उनकी कंपनसेशन, उनका काम को मॉनिटर करना, प्लस अगर वो ढंग से काम नहीं करते तो उनका रिप्लेसिंग भी, वो भी आपको ही देखना है. तो उस चीज़ से रिगार्डिंग आप इसको इलेबोरेट कर पाओगे. फिर अलाइंग की मैनेजरियल पर्सन, सेकंड पॉइंट भी आप इनको मर्ज कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है तो नेक्स्ट ही पॉइंट रखें. ये भी की मैनेजरियल पर्सन से रिलेटेड है, तो इसमें भी आप मर्ज कर लीजिएगा. इसमें रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स की बात की गई है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस. ओके, देखो अब इंश्योर करना कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है बोर्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ट्रांसपेरेंट रहे. हाँ, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स हो सकती हैं, एक्सपीरियंस, नॉलेज, पर्सपेक्टिव, जेंडर्स इन द बोर्ड. अब यहाँ पे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ऐसा हो सकता है ना कि उनके बीच में ही अनबन हो. तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को मौका ही नहीं दिया जा रहा है. पता चलो वो डायरेक्टर तो है पर उसको ये मौका ही नहीं दे रहा है कि वो अपनी बातें रख सकें. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. देयर कैन बी डाइवर्सिटी इन थॉट्स, देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, सबका नॉलेज अलग होता है, सबका व्यू हो सकता है. तो आपको वो चीज़ देखनी है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, सबकी बात रखी जाए. ठीक है, ये भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो डोंट फॉरगेट व्हाट वी आर रीडिंग इनटू, है ना. तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी. नाउ इंटीग्रिटी क्या, कि अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंशियल रहे. आपकी जो भी चीज़ें हैं वो किस लेवल तक कितनी जानी चाहिए, किसको कितना ऑथराइजेशन होना चाहिए, कितना एक्सेस होना चाहिए, इस चीज़ को आपको देखना है. तो इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. देखिए फिनेंसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रादर इट इज़ द ब्लड ऑफ द एंटिटी. तो उससे रिगार्डिंग राइट्स अथॉरिटीज़ में थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है. तो इसलिए बोर्ड को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसमें जो भी हो रहा है उसमें उनका कंट्रोल रहे, उनका सुपरविजन रहे, रादर उनकी ऑथराइजेशन से काम हो रहे हो. तो इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट ऑडिट and the appropriate system of control and are in place, in particular system of risk management, financial and operational control, compliance with the laws and relevant standards. Last, overseeing the process of disclosures and communication, and monitoring and review the board of directors evaluation framework. So these are easy to go. फिर कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की है, मतलब उसी को ही ना बस फैलाते जा रहे हैं. अभी सबसे पहले उन्होंने बोल दिया डिस्क्लोजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दिया, फिर की फंक्शंस क्या हो सकते हैं बोर्ड के. अब जो कुछ बच गया है ना, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो उसमें डाल के उसको वाइंड अप कर सकते हैं. अब क्या बचा हुआ है, जैसे अपन देख सकते हैं कि सारी स्ट्रैटेजिक गाइडेंस, कॉमन सेंस की बात है. अब सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन सेंस यूज़ करके आ जाएगी कि अगर स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देनी है तो कौन देगा भाई, टॉप का बंदा ही तो देगा ना, जिसकी एंटिटी है, जो इसका डे टू डे फंक्शन के लिए देख रहा है, वो उसकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाएगा. स्ट्रैटेजिक यानी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस है ये सारे डिसीजंस का. ठीक है ना, टॉप लेवल से बनेगा. फिर सेकेंड इज कॉर्पोरेट कल्चर. कैसा कॉर्पोरेट कल्चर बनाना है, हम जैसे काम करेंगे वैसे ही हमारे अंदर लोग काम करेंगे. आप लीनियंटली टालते रहो, आज नहीं कल नहीं परसों, तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो भी ऐसे ही करेंगे. तो जो भी कॉर्पोरेट कल्चर सेट करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी. फिर ड्यू डिलिजेंस एंड केयर, इससे रिगार्डिंग. फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टर्म्स बस मार्क कर लीजिए, नॉट नेसेसरी टू गो इन डेप्थ बिकॉज ये सब ऐसे ही है. इंडिपेंडेंट जजमेंट, किसी भी चीज़ के लिए उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. फिर ये चीज़ की एबिलिटी टू स्टेप बैक टू असिस्ट दिस पॉइंट. The board of directors shall have the ability to step back to assist executive manager by challenging the assumption underlying strategic initiatives such as acquisition, risk appetite, exposures and key areas of listed entity focus. What does this mean? कि अगर सपोज कोई प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान, अब जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा है वो भी इंसान है, गलती कर सकता है. तो अगर कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है जहां आपको लगता है कि नहीं ये वाला पॉलिसी नहीं वर्क कर रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना होना चाहिए कि वो कम बैक करें, एक स्टेप बैक लें, उसके बाद उस पर वापस सोचें
और उसको वापस सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें. तो दिस पॉइंट बेसिकली टेल्स दैट. उसके बाद आप ये जो है 11th पॉइंट एंड 12th पॉइंट, दीज आर बेसिकली प्रोसीजर्स एंड मैंडेट्स से रिलेटेड है. यू कैन राइट डाउन फॉर दीज 2 पॉइंट एज प्रोसीजर्स एंड मैंडेट्स एंड रीड इट. Then the last 2 points 13 and 14, last are the commitments and responsibility. So you can go through it, it's nothing which is not understandable. यहाँ तक अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सारा हो गया मैम, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया क्या चैप्टर. नहीं, ये तो अभी सिर्फ एक रेगुलेशन पढ़ा है आपने, रेगुलेशन नंबर 4. तो इसके बाद शुरू बहुत सारे, अब ये ही बस एक रेगुलेशन था जो ज़्यादा लेंदी हो गया. इसके बाद सारे रेगुलेशंस छोटे छोटे होंगे. तो लेट्स सी नाउ, जो बाकी रेगुलेशन है उसको हमने कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्लासीफाई किया कि क्या कॉमन ऑब्लिगेशन है. कोई भी लिस्टेड एंटिटी है तो उसके हर एक एंटिटी के लिए नेसेसरी है, ये सबके लिए कॉमन है ये ऑब्लिगेशंस. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली रेगुलेशन नंबर 5 से. जनरल ऑब्लिगेशन, यहाँ आपको अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग, यू नीड टू लर्न द रेगुलेशन नंबर अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द टाइटल, क्योंकि वो एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक्सप्लेन रेगुलेशन नंबर 5 या फिर विच what does regulation 5 deals in, what does regulation 5 of SEBI LODR deals in. तो वो चीज़ें आ सकती हैं जहाँ अगर आप मिस कर गए कि वो रेगुलेशन नंबर का नेम क्या है, तो फिर अंदर लिखने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा. आप कुछ भी सही भी लिख रहे होंगे किसी पर्टिकुलर उसके अंदर, बट वो रेगुलेशन नहीं है, तो फिर वो आंसर रॉन्ग. The listed entity shall ensure that key managerial personnel, directors, promoters, and any other person dealing with the listed entity complies with the responsibility or obligations, if any, assigned to them under these regulations. यहाँ पे रेगुलेशन 5 क्या कह रहा है कि जो लिस्टेड एंटिटी है ना, उन्हें देखना चाहिए कि जो की मैनेजरियल पर्सनस हैं, डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के प्रमोटर्स हैं, या फिर जो भी कोई भी पर्सन है जो एंटिटी से डील करता है, वो हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है और ओब्लाइज्ड है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे रेगुलेशंस जो उस एंटिटी पे लगते हैं उनका कंप्लायंस करे. इसलिए इसे कहा गया है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस. सबके ऊपर एक जनरल ऑब्लिगेशन है कि कंप्लायंस करना है आपको. ठीक है, फिर रेगुलेशन 6, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन. दिस इज दैट कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? यस, वी है ना. तो यह कंपनी सेक्रेटरी को थोड़ा सा इज्जत मिली है रेगुलेशन नंबर 6 में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि शैल अपॉइंट अ क्वालिफाइड एंटिटी को, एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है एज कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कंपनी सेक्रेटरी किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इंश्योर करेगा कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस इन लेटर एंड स्पिरिट. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी लेटर एंड स्पिरिट का मतलब कि जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, लॉ जो प्रोविजन बोल रहा है लगाने, वो आप सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से भी फॉलो करें, है ना. फिर कोऑर्डिनेशन विथ and reporting to SEBI, recognized stock exchanges and depositories. तो जो भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, है ना, अपन को जैसे SEBI को भी रिपोर्टिंग करनी होती है. रिकग्नाइज्ड अपन मतलब कौन? लिस्टेड एंटिटी. लिस्टेड एंटिटी SEBI को भी रिपोर्टिंग कर रहा है, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी रिपोर्टिंग कर रहा है, डिपॉजिटरीज को भी रिपोर्टिंग कर रहा है. बट ऐसा ना हो ना कि आप एक ही चीज़, एनुअल रिपोर्ट सपोज अगर SEBI को भेज रहे हैं तो वहाँ कुछ और बता रही है, यहाँ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का कुछ और बता रहा है, कहीं और डिपॉजिटरी में कुछ और बता दिया. तो ये नहीं हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, फिर मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर्स. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल डिविजन्स हैं उसमें आपको ईमेल्स के थ्रू अगर कोई ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपको ईमेल कर रहे हैं, तो आप उसका भी मॉनिटर करिए, उसको भी देखिए. ठीक है, फिर इंश्योरिंग करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी. फिर करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टम, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी. यानी कि जो भी आप फाइल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स या फिर जो भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, हाँ, लिस्टेड एंटिटी जो भी दे रहा है ना, वो करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. फिर ये चीज़ याद रखिए, ये जो रेगुलेशन है ये म्यूचुअल फंड में अप्लाई नहीं होता.
Now this is another important regulation, regulation 7, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट. इससे पहले हम रेगुलेशन 7 को डिटेल में पढ़ें. अब बताइए रेगुलेशन नंबर 5 क्या था, याद करिए. 5, रेगुलेशन 5, यस, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंसेस. रेगुलेशन नंबर 6 क्या था, यस आपके ऊपर है ये तो, कंपनी सेक्रेटरी, तो कंप्लायंस ऑफिसर्स की ऑब्लिगेशंस बताता है 6 में. और रेगुलेशन नंबर 4 क्या था, रेगुलेशन नंबर 4 में प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स, फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से रिगार्डिंग, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिगार्डिंग भी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग भी. ओके, नाउ रेगुलेशन 7, दैट इज शेयर ट्रांसफर एजेंट. नाउ फर्स्ट शाल एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी को लिए मैंडेटरी कहा गया है कि आपको क्या अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है. शाल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैनेज शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन हाउस ओनली इफ सिक्योरिटी होल्ड, कब करना है, जब आपकी इफ़ सिक्योरिटी होल्डर्स आर लेस देन 1 लाख की से अंदर है. तो कैटेगरी 1 वर्क एज ये एक कैटेगरी हो गई. तो यहाँ पे क्या है, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन हाउस तभी कर सकते हो आप, यानी शेयर ट्रांसफ़र के बिना कर सकते हो कब, जब आपके 1 लाख से कम सिक्योरिटी होल्डर हैं. फिर इन केस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन हाउस रजिस्ट्री इंक्रीजेज बियॉन्ड 1 लाख, देन द कंपनी कैन अप्लाई फॉर कैटेगरी 2 STA. ये जो था ना, ये कैटेगरी 1 कहलाया है ना. जब तक आप सिक्योरिटी होल्डर्स लेस देन 1 लाख थे तो आप STA 1 यानी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट 1 कैटेगरी 1 में क्लासिफाइड थे. पर जैसे ही आप 1 लाख के ऊपर जाते हैं तो आप कैटेगरी 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और फिर अपॉइंट किए जा सकते हैं एज कैटेगरी 2 STA रजिस्टर्ड विद सेबी. नाउ all activities in relation to share transfer are either maintained in-house or by STA registered with SEBI and submit compliance certificate regarding the same on half yearly basis. यहाँ पे जो ऊपर चाहे वो STA 1 कैटेगरी 1 हो या STA कैटेगरी 2 हो, उन्हें हाफ ईयरली बेसिस में अपनी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ती है सेबी को. कब, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ड्यूली साइंड बाय कंप्लाइंस ऑफिसर एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ STA. तो किसको, आपको 1 महीने के अंदर जब आपका हाफ ईयरली ख़त्म होता है, एंड ऑफ द हाफ ईयरली, कैसा आपका साइन हो, यानी कंपनी सेक्रेटरी का साइंड बाय कंप्लाइंस ऑफिसर एंड कोई भी जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ STA हो उसके भी साइन होने चाहिए. एनी चेंजेस ऑफ अपॉइंट और अपॉइंट ऑफ न्यू STA लिस्टेड एंटिटी शाल इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज. अगर आप बदल रहे हैं अपना STA, हाँ, तो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बदल रहे हैं, तो वो आप सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज को 7 दिन के अंदर बता देना. किसके 7 दिन के अंदर, जब आपने नया अग्रीमेंट एंटर किया, नए स्टॉक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से एंटर किया, उसके 7 दिन के अंदर बताना है. फिर ये वाला रेगुलेशन भी म्यूचुअल फंड लिस्ट पे अप्लाई नहीं होता. नाउ रेगुलेशन 8, रेगुलेशन 7 पढ़ा हमने, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट. रेगुलेशन 8, कॉपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी. ओके, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि साथ दो, जवाब दो. हाँ, तो जब आप बोल रहे हैं ना कि अगर आप यहाँ पे बोला गया है जो इंटरमीडियरीज है ना, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये जो आपने ऊपर पढ़ा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट. हाँ, ऐसे ही जो भी आपके ट्रस्टीज़ हुए, बीच में ट्रस्टीज़ हुए या फिर ब्रोकर्स हुए, ये सारे इंटरमीडियरीज़ हैं. किसके बीच के इंटरमीडियरीज़, यानी सेबी, एक तरफ सेबी है और एक तरफ आप हैं. आप मतलब लिस्टेड एंटिटीज़ हो सकते हैं, इनके बीच में कौन है, इनके बीच में ये इंटरमीडियरीज़ हैं. तो इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ डाली हैं रेगुलेशन 8 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप cooperate with and submit correct and adequate information to intermediaries registered with SEBI, such as credit rating agencies, registrar to an issue, share transfer agent, debenture trustees, etc., within timeline and procedures specified under the Act, respective regulations and circulars issued under the Act. ना यहाँ पे आपसे सिर्फ कॉपरेशन मांगा है, फिर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दें वो करेक्ट दें, एडिक्वेट दें. किनको, ये जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जिनका नाम हमने पढ़ा. फिर ये वाला रेगुलेशन भी म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई नहीं होता. रेगुलेशन 9, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स.
यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं प्रिजर्व करके रखने हैं, बचा के रखने हैं। तो शैल हैव अ पॉलिसी, लिस्टेड एंटिटी शैल हैव अ पॉलिसी कि कब तक वो डॉक्यूमेंट्स रखे। वो पॉलिसी अप्रूव्ड होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं उसे भी एक वैलिड मोड माना गया है। कब तक के लिए रखना है? तो प्रिजर्वेशन एटलीस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज फॉलोज। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे 2 कैटेगरी में बोल देते हैं। पहला, डॉक्यूमेंट परमानेंट इन नेचर। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स विथ प्रिजर्वेशन मोर देन 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये जो प्रिजर्वेशन हो रहा है इसके दो वाले डॉक्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन, जो परमानेंट नेचर के उनका तो आपको करना ही करना है, और जो सेकंड है उनका प्रिजर्वेशन मोर देन 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन खत्म हुआ उसके बाद से 8 साल तक के लिए तो कम से कम प्रिजर्व करना ही है। रेगुलेशन 9 हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाउ रेगुलेशन 10, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। See, we are reading the regulations. Once we are end with all the regulations, I'll be telling you what all the important regulations are which you need to learn up. So you can make the list of those regulations, and then we'll learn. We'll try to remember. Like right now also in between we'll keep dodging ki kaun sa regulation. Come on, tell. Regulation 9 was for preservation of document. उल्टा जाते हैं. Regulation 8, कॉपरेशंस विथ इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज की बात हुई थी। 7 में STS शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की बात हुई थी। 6 में आपकी बात कंप्लायंस ऑफिसर की बात हुई थी, उसके ऑब्लिगेशन। 5 जनरल ऑब्लिगेशंस की बात हुई थी कंप्लायंस से रिलेटेड। 4 प्रिंसिपल्स से बात हुई थी जिसमें डिस्क्लोजर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स से। फाइन। नाउ रेगुलेशन 10, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। To file all reports, statements, documents and other informations with recognized stock exchange on electronic platform as specified by SEBI on or recognized stock exchange। तो ये रेगुलेशन बोलता है कि आपको सारे रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन सेबी बोल रहा है या रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है उनके पास आना चाहिए, तो उनके पास आपको फाइल करना चाहिए। टू पुट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। फिर जो भी अगर इसके बीच में आपको कोई क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर लगाना पड़ रहा है या कोई सिस्टम सेटअप करना पड़ रहा है कि रियल टाइम बेसिस में अपडेटेड हो जाए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल हो, तो आप वो सब काम जो भी नेसेसरी है वो करके रखना है। ये भी लिस्टेड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ रेगुलेशन 11, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। नाउ दिस इज लाइक अरेंजमेंट से ही आपको पता लग गया ना कि क्या या तो मर्जर हो रहा है या कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो उससे रिगार्डिंग स्कीम से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। टू इंश्योर दैट एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, amalgamation, merger, reconstruction, reduction of capital, etc. to be presented to any court or tribunal does not in any way violate, override or limit the provisions of securities laws or requirements of the stock exchange। तो जो भी आप स्कीम पास कराएं कोर्ट से, वो कहीं पे भी वायलेट नहीं करना चाहिए या ओवरराइड नहीं करना चाहिए जो भी ये सिक्योरिटी लॉज के प्रोविजंस हैं उनसे, या फिर अगर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे उनका वायलेशन नहीं हो, ऐसे देखिएगा कि ये इंश्योर करिएगा कि वो स्कीम्स उनका वायलेशन ना करे। फिर रेगुलेशन 11 भी म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई नहीं होता है। अब तक कितने कौन कौन से रेगुलेशंस थे जो म्यूचुअल फंड में अप्लाई नहीं होते? रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 6 कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर वाला, फिर रेगुलेशन 7 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वाला, वो भी नहीं होता, एंड रेगुलेशन 8। तो बेसिकली 6 कंप्लायंस ऑफिसर की ऑब्लिगेशंस, 7 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, 8 कॉपरेशन विद इंटरमीडियरीज, एंड नाउ 11 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये सारे म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई नहीं होंगे। नाउ रेगुलेशन 12, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ऑफ redemption or repayment. Now, use payment facility in electronic mode for payment of dividend, interest, redemption and or repayment of amount. ठीक है, approved by the Reserve Bank of India। देखो बोल रहा है कि कोई भी पेमेंट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली, किसके लिए? फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या रिडेम्पशन का कोई पेमेंट करना है, एवरी पेमेंट करना है, हाँ, या फिर उसके बाद पर जो भी पेमेंट का फैसिलिटी आप ऑप्ट करें वो अप्रूव्ड होना चाहिए RBI द्वारा। फिर इफ इलेक्ट्रॉनिक मोड इज़ नॉट पॉसिबल,
if electronic mode is not possible to be used. Issue payable at par warrant check. Speed post to be used for payable at par check. तो वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कर पाएँ तो आप पे एट पार वाले वारंट्स यूज़ कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं. और अगर पे एट पार के चेक्स मोर देन 1500 अमाउंट के हैं तो स्पीड पोस्ट करें. नॉट रेलिवेंट. नाउ रेगुलेशन 13 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन. यस, रेगुलेशन 13 में खतरा यानी ग्रीवियंसेस, लोगों के दुख दर्द हैं, तो उसको आपको याद रखना है. आप कैसे रखना है? तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में एडिक्वेट स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर एक्सपीडिशियस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट. जितने भी इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट आ रहे हैं उसके लिए आपने बहुत ही मतलब स्टेप्स लिए हों कि उनको रिजॉल्व करने के लिए आपने अच्छे से स्टेप्स लिए हों. इस चीज़ को इंश्योर करिए. फिर इंश्योर करिए कि इट इज़ रजिस्टर्ड विद स्कोर्स. स्कोर्स का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यानी कि सेबी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे जाके आप डायरेक्टली, ये प्लेटफॉर्म बना ही इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस एड्रेस होंगे. तो इंश्योर दैट इट इज़ रजिस्टर्ड विद स्कोर्स प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑफ सेबी फॉर हैंडिंग इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. तो सेबी कहता है कि यार अगर इन्वेस्टर्स के लिए डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने ग्रीवियंसेस नहीं पहुंचा पा रहा है आप तक, तो या तो आप ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म जो उनने खुद ही नोटिफाई कर रखा है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ सेबी फॉर कंप्लेंट्स रिड्रेसल्स, तो या तो आप अपनी एंटिटी को उधर रजिस्टर कराइए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कराइए जिससे इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेस्टर्स तुरंत कंप्लेन अपनी लॉन्च कर सकें. स्टेटमेंट ऑन इन्वेस्टर्स कंप्लेंट, फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स कंप्लेंट की वो सबमिट करना है टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. नाउ स्टेटमेंट जो दे रहे हो वो क्या क्या होना चाहिए, उसमें स्टेटमेंट में होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग थे बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में, क्वार्टरली जा रही है ना, फिर कितने ड्यूरिंग द क्वार्टर रिसीव हुए, फिर कितने रिजॉल्व कर दिया आपने क्वार्टर में, फिर रिमेनिंग वो है ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग परचेज सेल क्लोजिंग, है ना. वैसे ही आपको इसका भी डेटा देना है. फिर टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑफ कोर्स. Regulation 14 fees and other charges. Payments of such fees and charges as applicable including listing fees, not relevant. Okay. Regulation 15 of 2. The following regulation are not applicable. ये नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है जहाँ पे रेगुलेशन 17A, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये वाले रेगुलेशंस पे ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है प्रिंसिपल्स. नाउ ये आपने कहाँ पढ़े होंगे, ये आपने पढ़े होंगे एथिक्स में कहीं इनका रेलेवेंस पड़ा होगा, जहाँ पे 17 था CEO CFO ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, 18 में आपने ऑडिट कमेटी से रिगार्डिंग कहीं पढ़ा होगा, 20 में आपने स्टेक होल्डर्स कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, ये सारी कमिटीज़ के रिगार्डिंग पढ़ा होगा. ये सारी रेगुलेशंस उनसे डील करते हैं. प्लस इनमें भी नहीं लगता है, यू जस्ट कैन गो थ्रू. Then for listed entity having paid up equity share capital of less than 10 crores, listed entity, उन listed entity पे नहीं होंगे ये regulations applicable where paid up equity share capital is less than 10 crores and net worth is less than 25 crores. Fine. Now you can go through, read this, nothing such. Now let's directly come towards the equity. Sorry. Directly come to the equity, that is main board. यहाँ पे जो है, यहाँ पढ़ सकते हैं ना, ये यहाँ तक के जो रेगुलेशंस हैं ना, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए फ्रॉम रेगुलेशन 17 to 27, वो आप ना अपने एथिक्स, ये GRMCE वाला मॉड्यूल है ना, उस पर पढ़ सकते हो. यहाँ पे फिर डायरेक्टली स्किप किया उन्होंने, 28 तक आए, उतने रेगुलेशन स्किप करके रेगुलेशन 28 इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. इससे पहले थोड़ा सा पीछे का रिव्यू करें या आगे बढ़ें, क्योंकि आगे के रेगुलेशंस और डिटेल्ड हैं, बड़े हैं, तो कर लेते एक बारी, है ना. अपन करते हैं 13th. बताइए, अच्छा रैंडमली पूछती हूँ. 13th ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वेरी गुड. देन 12th पेमेंट, 12th हम नहीं पढ़े, ओके नहीं पढ़ा है, कम ऑन. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट रिडेम्पशन वाला. फिर 11 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. 8
intermediaries, yes, and 7 share transfer agent. Good. Now regulation 28 in principle approval. Okay guys, so here regulation number 28 in principle approval of recognized stock exchange. The listed entity before issuing security shall obtain, यहाँ पे हम जितने भी आप रेगुलेशन पढ़ेंगे ना गाइस, तो this is basically dealing in equity dealing in equity, so you have to read the provisions keeping in mind equity shares are been dealing into this. Now, the listed entity before issuing securities shall obtain an in principle approval from recognized stock exchange in following manner. First, where securities are listed only on a recognized stock exchange having nationwide terminal from all such security exchange. Now, अगर हमको in principle approval चाहिए, इसका क्या मतलब है कि आपको एक permission चाहिए है कि आप यहाँ पे registered list हो सकते हैं, इसकी एक permission चाहिए है उस recognized stock exchange से कि आप उनके प्लेटफॉर्म में लिस्ट होना चाहते हैं, इस चीज़ की परमिशन दे दीजिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मांग रहे हैं. तो जब आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है ऑन ओनली ऑन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो ऐसी सारी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप ऐसे लिस्टेड हैं, तब आपको सारे रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से उनका अप्रूवल चाहिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए. जब कोई रिकग्नाइज व्हेन द सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल from all stock exchanges in which the securities of the issuer are proposed to be listed. देखो अगर listed है तो फिर उन जहाँ पे listed हो, जिन stock exchanges में listed हो, जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, उनसे आपको अप्रूवल चाहिए. अगर listed नहीं है तो जहाँ आप प्रपोज, जैसे अगर आप सोच रहे हैं मैं लंदन पर जैसे आप सोच रहे हैं अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं, हाँ, तो आपको उनकी अप्रूवल चाहिए. तो जिन प्लेटफॉर्म्स में आप जिन स्टॉक एक्सचेंजेस में आप लिस्ट होने की सोच रहे हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, वेयर इशूअर आर प्रपोज टू बी लिस्टेड, जहाँ आपने एप्लीकेशन लगा रखी है, अभी आप लिस्ट नहीं हुए हैं, तो उनसे आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए. नाउ वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल एज वेल एज ऑन द रिकग्नाइज्ड stock exchanges not having nationwide trading terminal from all recognized stock exchanges having nationwide trading terminal. अब suppose आपकी सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स में भी, एंड कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ भी हैं जो लिस्टेड हैं नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स. तो ऐसे में आपको उन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल चाहिए जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है. Now, the requirement of obtaining in principle approval from recognized stock exchange shall not be applicable to for securities issued pursuant to the scheme of arrangement for which the listed entity has already obtained no objection letter from recognized stock exchanges in accordance with regulation 37. तो अगर ऐसा है कि आप कहीं पे कोई अरेंजमेंट के तहत कहीं पे मर्ज हुए हैं, लिस्टेड कहीं कोई अरेंजमेंट के थ्रू आपकी सिक्योरिटीज़ कहीं और मर्ज हो गई है, फॉर विच लिस्टेड एंटिटी हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन, जहाँ के लिए जिस एंटिटी से आप मर्ज हुए हैं वो उस एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है, उसने ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुका है नो ऑब्जेक्शन लेटर, उस रिकग्नाइज उस स्कीम के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर ले चुका है, तो तब आपको ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने की ज़रूरत है ना उस स्टॉक एक्सचेंज से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Now next regulation 29, prior intimation of board meeting to stock exchange. This is also an important regulation, prior intimation of board meeting to stock exchange, market important. Now prior intimation of board meeting where any of the following proposals is to be considered. Now कितने दिन पहले बोर्ड मीटिंग करने के कितने दिन पहले ऐसा क्लियर इंडिकेशन देना चाहिए, मतलब क्लियर नोटिस देना चाहिए, इंटीमेशन देना चाहिए, और किस किस पर्पस से कितने दिन, कौन सा पर्पस कितने दिन पहले इंटीमेट होना चाहिए, इधर पे बताया जा रहा है. तो यहाँ पे आपको बेसिकली ना कैसे करना है, 5 चीज़ हैं इधर पे ना, 3 डेट्स हैं. पहला 5 क्लियर डेज, 2 क्लियर वर्किंग डेज एंड लास्ट है 11 वर्किंग डेज. ठीक है ना. तो अभी हमें कैसे समझना है कि ये जो 5 वर्किंग डेज है इसमें
बहुत ही एक ही आइटम है, मतलब एक समझ लो एक ही आइटम के लिए आपको 5 क्लियर डेज का प्रपोजल देना है। किसके लिए? फाइनेंशियल रिजल्ट से रिगार्डिंग। तो ये आप लर्न कर लो। 2 वर्किंग डेज के लिए भी लिमिटेड है, आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। जो बच जाएगा उसे हम अपने आप ऑटोमेटिकली 11 वर्किंग डेज की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। नाउ 5 वर्किंग डेज का हमने पहले ही पढ़ा। एटलीस्ट 5 क्लियर वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ मीटिंग। किस चीज़ के लिए? कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स नेमली क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, तो इंटीमेशन विथ डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, इंटीमेशन विद द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो आपको बोर्ड मीटिंग के 5 वर्किंग डेज से पहले बताना है कम से कम। फिर एटलीस्ट 2 क्लियर वर्किंग डेज होने चाहिए एक्सक्लूडिंग द, ऑब्वियसली ये चीज़ याद रखना, डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड करते हुए 2 वर्किंग डेज। किस ट्रांजैक्शन के लिए ये देखते हैं? जब आप कोई प्रपोजल दे रहे हो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ का, कोई प्रपोजल फॉर वॉलेंट्री डीलिस्टिंग है, फिर फंड रेजिंग करना है आपको, एफपीओ लाना है, राइट इशू लाना है, एडीआर्स इशू कर रहे हो, जीडीआर्स इशू कर रहे हो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में डील करना है, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट्स कर रहे हो, डेट सिक्योरिटीज़, प्रेफरेंशियल इशूज़, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस करना है। इन सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको 2 क्लियर वर्किंग डेज का इंटीमेशन देना पड़ेगा। नाउ इन ट्रांजेक्शन्स को तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट ऑफ दिस। एंड एनी एजीएम और ईजीएम और पोस्टल बैलेट प्रपोज टू बी हेल्ड फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर फर्दर फंड रेजिंग इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इशुएंस। तो अगर आप कोई भी एजीएम ईजीएम कर रहे हो, कोई और टाइप का फंड रेज करने के लिए कोई फर्दर अप्रूवल, तब भी आपको 2 वर्किंग डेज का रखना है। फिर डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड्स, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इशूइंग इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और डिवेंचर्स कैरिंग अ राइट टू सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर्स और पासिंग ओवर ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो या फिर कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, कोई भी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या डिवेंचर्स जिसमें कोई राइट है उसको सब्सक्राइब करने के लिए दे रहे हो, या फिर इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब करने की बात हो, या फिर कोई भी डिविडेंड पास ओवर करना हो, तो भी आपको एटलीस्ट 2 क्लियर वर्किंग डेज का बोर्ड को इंटीमेशन देना पड़ेगा। फिर प्रपोजल टू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज इफ पार्ट ऑफ एजेंडा पेपर। हाँ, अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज़ का भी सोच रहे हो तो भी 2 वर्किंग डेज। नाउ एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज। जो कहीं नहीं समझ आया वो यहाँ समझ में आएगा। कोई भी ऑल्टरेशन है इन द फॉर्म ऑफ नेचर of securities, any alteration in the form or nature of any of its securities or its rights or privileges of the holders thereof, any alteration in the date of which on which the interest of the debentures or bonds or redemptions of amounts of redeemable shares or debentures or bonds shall be payable. तो रादर आप ना इसका उल्टा भी कर सकते हो, एज इन कि 5 और 11 को याद कर लो, ठीक है ना। 11 में भी सारे ऑल्टरेशन 2 हैं, मात्र 2 ऑल्टरेशन का, ये 2 को छोड़ दिया, आप जितने बच्चे बाकी सारे 2 दिन में कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 30, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर्स ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशंस। नाउ this regulation is also disclosure based, very easy, nothing as such. Disclosure of any event or information which in the opinion of the board of directors of the listed companies material, उसको डिस्क्लोज करिए। जो भी आपको लग रहा है मटीरियल है उसको डिस्क्लोजर करना चाहिए आपको उस इन्फॉर्मेशन को। इवेंट्स मेंशन इन शेड्यूल 3 पार्ट ए आर डीम्ड टू बी मटीरियल। अब क्या मटीरियल है, क्या एम मटीरियल है, ये कौन जज करेगा? ये जज करेगा ये शेड्यूल 3 पार्ट ए। तो शेड्यूल 3 में पार्ट ए जो है वो तो मान ही लो, वो बोल रहे हैं, वो ने साफ कह दिया डीम टू बी मटीरियल, मान ही लो कि वो तो मटीरियल है ही। नाउ पार्ट बी में है वेयर द मटीरियलिटी कैन बी अप्लाइड, and part A deemed to be material and part B where materiality can be applied. part B में आप थोड़ा बहुत खुद देख सकते हो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कि वो मटेरियल है या नहीं, बट शेड्यूल 3 का पार्ट ए तो मटेरियल ही मान के चलो और उसका डिस्क्लोजर करना अनिवार्य है एज पर रेगुलेशन 30. नाउ these events are to be disclosed promptly and not later than 24 hours. Certain events are required to be disclosed within 30 minutes of the conclusions of the board meeting. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ डिस्क्लोजर्स प्रॉम्प्टली करना है, हाँ, जिसमें आपने बोला 24 घंटे भी नहीं बीतने चाहिए और उसका डिस्क्लोजर हो जाना चाहिए। और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें इतना फ्रीक्वेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए कि
30 मिनट के अंदर, जहाँ बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई उससे 30 मिनट में ही आपको डिस्क्लोजर करना है. नाउ लेट्स गो इन टू शेड्यूल 3 पार्ट ए, disclosure of events or information specified in securities. Now the following shall be the events. यहाँ पे हम अभी इनको अभी हमने पढ़ा ना कि ऊपर जहाँ पे बोला मटीरियल मानो ही मानो, यानी शेड्यूल 3 का पार्ट ए तो मटीरियल है ही है 30 रेगुलेशन 30 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो. तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट मार्क दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द फॉलोइंग शैल बी द इवेंट्स or informations upon occurrence of which listed entity shall make disclosure to stock exchange. जब ये events घटें तो आप तुरंत stock exchange को बताने पहुँचिए, ठीक है ना, कि क्या हुआ है. Now events which shall be disclosed without any application of guidelines for materiality are specified in sub regulation 4 of regulation 30. तो ये basically 30 का ही regulation हमने ऊपर पढ़ा ही है, उसका sub regulation 4 इसको guide कर रहा है. Now first क्या है, first है acquisition. Acquisition including agreement to acquire, scheme of arrangement including amalgamation, merger, demerger, reconstruction, or sale or disposal of any units, divisions, subsidiaries of the listed entity or any other restructuring. तो कोई भी टाइप का restructuring हो रहा है तो उसको मटीरियल मानो. ऑब्वियसली बात है ना यार, ये तो कोई छोटा मोटा सा डिसीजन नहीं होगा कि इससे जाके मर्ज हो जाते हैं, इससे अमलगमेशन हो रहा है या कोई भी सेल हो रही है यूनिट की, ये बहुत बड़े डिसीजन है, तो ये हमेशा मटीरियल होंगे. नाउ सेकेंड, इशुएंस ऑफ forfeiture of securities, split or consolidation of shares, buyback of securities, any restrictions on transferability of securities or alteration in terms of structure or existing securities including forfeiture, reissue of forfeited securities, alteration of calls, रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ इसमें क्या है कि अगर आपने सिक्योरिटी से रिगार्डिंग जो भी शेयर्स से रिगार्डिंग कुछ काम किया, उनका फोरफीचर किया, उनको स्प्लिट किया, उनको कंसोलिडेट किया, उनका बायबैक किया, उनको ट्रांसफ़र किया, उनकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑल्टर किया, कोई कॉल मंगाया, कुछ रिडेम्पशन किया या सिक्योरिटीज़ इशू की, कुछ भी किया, वो आपका इशुएंस, वो आपका एक मटीरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. नाउ रिविजन इन रेटिंग, ये छोटा सा पॉइंट किया कि अगर आप क्रेडिट, जैसे CRR क्रेडिट रेटिंग दे रहा है ना, अब A ग्रेड से B ग्रेड, A+ ग्रेड में, या तो अपवर्ड कुछ रेटिंग हुई या डाउनवर्ड रेटिंग हुई, तो इसको रिविजन इन रेटिंग में काउंट किया जाएगा. Outcomes of meetings of the board of directors, the listed entity shall disclose to this exchange within 30 minutes of the closure of the meeting held to be considered the following. Now यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कितने प्रॉम्प्टली आपको डिस्क्लोजर करना है. कुछ ट्रांजैक्शंस तो इतने मटीरियल हैं जिनको आपको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है, और कुछ तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुई नहीं कि उसके 30 मिनट के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है. तो जो 30 मिनट वाली रिपोर्टिंग है उनमें क्या कवर होता है, तो outcomes of the meetings of the board of directors, the listed entity shall disclose to the exchange within 30 minutes. 30 मिनट के अंदर कंक्लूड हुई आपकी मीटिंग और उसके 30 मिनट के अंदर ये वाले ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने चाहिए आपको. किनको? स्टॉक एक्सचेंज को. अगर कोई डिविडेंड और कैश बोनस रिकमेंडेड और डिक्लेयर्ड, or the decision to pass the dividend and the date on which dividend shall be paid or dispatched, और या फिर कोई भी कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड रिकमेंड करना, देना से रिलेटेड, डिविडेंड कैंसिल करने से रिलेटेड, उसके भी वो भी एक मटीरियल ट्रांजैक्शन है 30 मिनट्स वाला. हाँ, तो 30 मिनट्स डिविडेंड याद रखिएगा. नाउ डिसीजन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी 30 मिनट्स. डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग proposed to be undertaken. Now अगर आप कोई और नया सोर्स ऑफ फंड रेजिंग सोच रहे हैं तो वो भी उससे रिगार्डिंग डिसीजन भी 30 मिनट्स वाला डिसीजन कहलाता है. नाउ इंक्रीज इन कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स थ्रू कैपिटलाइजेशन इंक्लूडिंग डेट ऑन विच सच बोनस शेयर्स शैल बी क्रेडिटेड और डिस्पैच्ड. नाउ अगर आप क्या कर रहे हैं कि कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हो, आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो अपना कैपिटल? बोनस शेयर्स इशू करके. आपको पता होगा ना बोनस शेयर्स में क्या होता है. बोनस शेयर्स में क्या एडिशनल बोनस, मतलब आप शेयर्स इशू कर देते हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल बेस बढ़ जाता है. आप एक तरह से क्या कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन कर रहे हो. क्या? बोनस शेयर्स कैपिटलाइजेशन इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच द बोनस शेयर्स शैल बी क्रेडिटेड और डिस्पैच. तो सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग आपको बतानी पड़ेगी. नाउ री इशुएंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अगर कोई
फोरफीटेड शेयर्स को आप वापस इशू करना चाह रहे हो, आपने कहीं पढ़ा होगा कि फोरफीटेड शेयर्स आप उसी क्लास में या किन को इशू नहीं कर सकते, इस पर भी कुछ बार हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट येस देयर आर सर्टेन कंडीशन। तो अगर आप फोरफीटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं या फिर इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड इन रिजर्व for future issue or creation in any form or manner of new shares, new securities or any other rights or privileges or benefits to be subscribed। तो अगर इससे रिगार्डिंग forfeited shares या के रीइशू से रिगार्डिंग कुछ है तो आपको 30 मिनट्स में इन्फॉर्म करना चाहिए। शॉर्ट पर्टिकुलर्स और एनी अदर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग कॉल्स। देखो कैपिटल में कुछ भी छेड़खानी हुई ना तो उसमें चाहे आप कॉल्स मंगा रहे हो या कुछ भी, तो उससे शॉर्ट पर्टिकुलर्स आपको तुरंत बताने ही पड़ेंगे 30 मिनट्स में। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जहां हमने पढ़ा था कि इसका 5 दिन का इंटीमेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल पढ़ा था यस अभी जब हमने पढ़ा था कि 5 क्लियर डेज फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने हैं, यस तो उससे भी रिगार्डिंग आपको प्रॉम्प्ट मीटिंग यानी प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, है ना। वहाँ जहाँ अच्छा कहाँ पढ़ा था वैसे ये बताइए, रेगुलेशन 29 में, जहाँ हमने बोला था प्रायर इंटीमेशन देना है फाइनेंशियल रिजल्ट से रिगार्डिंग कितने दिन पहले, प्रायर टू एटलीस्ट 5 क्लियर डेज थे। यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है, उसी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के का डिस्क्लोजर करना है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। लास्ट डिसीजंस ऑन वॉलंटरी डीलिस्टिंग बाय द लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई भी डिसीजन आप ऐसा ले रहे हो कि वॉलंटरी डीलिस्ट कर रहे हो लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज से, ये भी बड़ा डिसीजन आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी एक पार्ट हुआ ना। अभी इसके बाद क्या क्या कवर्ड है, इसके बाद है आपका ये आउटकम्स ऑफ द मीटिंग, ये इसलिए कवर्ड था 30 मिनट्स, ये सारे 30 मिनट्स में कवर्ड थे, ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं कि किन चीज़ों का डिस्क्लोजर करना है। अब इधर 30 मिनट्स मत लगाइएगा, ओके 30 मिनट्स यहाँ आई पॉइंट पे ख़त्म हो गया है। नाउ इनका डिस्क्लोजर की बात चल रही है, अभी अपन ऊपर डिस्क्लोजर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये वाले डिस्क्लोजर्स यही कंटिन्यू हो रहे हैं। अब नॉर्मल डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। अग्रीमेंट, shareholders agreement, joint venture agreement, family settlement agreement, to the extent it impacts the management and control of the listed entities, treaties, contracts or media companies which are binding on and not in normal course of business, revisions or amendments and terminations thereof। Then कोई भी fraud by promoters, key managerial persons या listed entity द्वारा और arrest of key managerial persons के द्वारा हो रहा है, तो अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है या फिर किसी का अरेस्ट हुआ है की मैनेजरियल पर्सनस में, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। देन चेंजेस इन डायरेक्शंस, की मैनेजरियल पर्सनल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस यानी जो भी आपके की मैनेजरियल पर्सनस हैं उनमें अगर कोई भी डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं या की मैनेजरियल पर्सन चेंज हुआ है, ऑडिटर चेंज हुआ है, कंप्लायंस ऑफिसर चेंज हुआ है, तो ये भी डिस्क्लोजर वाली बात है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ in case of resignation of the auditor of the listed entity, detailed reasons for resignation of auditor as given by the said auditor shall be disclosed by the listed entity to the stock exchange as soon as possible, but not later than 24 hours on receipt of such reasons from the auditor। यहाँ पे 24 hours की बात हुई है, यानी अगर आपका रेजिग्नेशन, अगर आपके ऑडिटर ने रिज़ाइन करा है तो उसके द्वारा आपको ना क्या रेजिग्नेशन लेटर चाहिए होता है। वो रेजिग्नेशन लेटर में डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई क्यों कर रहा है वो रिज़ाइन, क्या रीज़न हो गया, और ये जो लेटर आया है ना ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा उधर पे। बट कब तक देना है, 24 hours ऑफ रिसीट ऑफ सच रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर। ऑडिटर ने जितने टाइम आपको दिया उसके 24 घंटे के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज को दे दें। Next is resignation of auditors, including reasons for resignation. In case of resignation of independent directors of the listed entity within 7 days, अगर ऑडिटर करता है रिज़ाइन तो उसका जो रेजिग्नेशन रीजनिंग लेटर है वो आपको 24 घंटे में देना है। पर अगर डायरेक्टर का रेजिग्नेशन देता है इंक्लूडिंग रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन तो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ जब बात हुई थी ना, ओके यहाँ जब बात हुई थी किसकी बात हुई थी, नॉर्मल ऑडिटर की बात हुई थी,
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की बात हुई थी। यहाँ पे जो हो रही है ना रेजिग्नेशन ऑफ, ये जो गलत, ये जो ऑडिटर वर्ड है ना, दिस इज द मिस प्रिंटिंग हियर, रिप्लेस इट गाइस, रिप्लेस दिस ऑडिटर, कैंसिल इट एंड राइट देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट प्रोविजन है ना, जो 7 दिन के अंदर देना है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऑडिटर से तो आपको नॉट लेटर देन 24 आवर्स उसका रेजिग्नेशन लेटर प्रोड्यूस करना है, पर रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से तो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। अब इसमें तो इन्होंने डिस्क्लोजर तक बता दिया है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। डिटेल्ड रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज गिवन बाय द सेड डायरेक्टर shall be disclosed by the listed entity to the stock exchange. The independent director shall, along with the detailed reasons, also provide a confirmation that there is no other material reasons other than the proposed reason. ये बहुत easy है, I'm just reading it. The confirmation as provided by the independent director above shall also disclosed by the, okay fine, तो ठीक है, इसमें डिटेल रीजनिंग देनी है। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीज़न के साथ साथ कोई भी अपना कंफर्मेशन भी दे कि देर इज़ नो मटेरियल रीजंस अदर देन दिस, कि अब इसके अलावा मेरे पास और कोई मटेरियल रीज़न नहीं है छोड़ने का, रिज़ाइन करने का। फिर जो वो कंफर्मेशन दे रहा है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए विद द रीजंस। अपॉइंटमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, फिर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम सेटलमेंट विद द बैंक, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या हुए हैं, डिस्क्लोजर के घेरे पे आते हैं। फिर अगर कोई रेफरेंस किया है BIFR के लिए, ठीक है, BIFR इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, तो अगर रेफरेंस दिया है BIFR के लिए एंड वाइंडिंग अ पिटिशन हैव बीन फाइल्ड बाय एनी पार्टी और क्रेडिटर्स, तो वो आपको बताना है। वो अगर आपने कोई भी इशुएंस किया है किस चीज़ का, कोई नोटिस भेजा गया है, कोई कॉल लेटर, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, कोई सर्कुलर पास हुआ है, तो वो इशुएंस ऑफ नोटिस, कॉल लेटर, रेजोल्यूशन, सर्कुलर जो कि आपने भेजा किसको है, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम और एडवर्टाइज्ड बाय इन द मीडिया बाय द लिस्टेड एंटिटी, तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना है। प्रोसीडिंग्स ऑफ एनुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, अगर कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं लिस्टेड एंटिटी की, उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इट्स लाइक यू नीड टू गो थ्रू इन शॉर्ट फुल प्रोसीजर। और अब यहाँ पे क्या, फिर क्या यहाँ पे दिया हमने, अमेंडमेंट किया गया अगर MOA AOA में, तो वो आपको बताना है, डिस्क्लोज करना है। हाँ, अगर कोई भी शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेड बाय द एंटिटी एनालिस्ट, तो उसको बताना है। फिर फॉलोइंग इवेंट्स इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर आपने कौन सा आपका मॉड्यूल आई गेस 3 पे है ना, इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP, है ना, जब आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई भी एंटिटी या फिर कोई एंटिटी का जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। तो उससे रिगार्डिंग कुछ भी हो, कोई भी बात हो, तो वो सारे डिस्क्लोजर्स इसमें आपको एक बार रीड थ्रू कर लेना। इन शॉर्ट पता है इनने क्या किया होगा कि पूरे मतलब किया है, ये पूरे प्रोसीजर्स को कवर कर लिया है उसका डिस्क्लोजर करने के लिए। जितना भी CI कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में प्रोसीजर है, उससे रिगार्डिंग इन्हें कवर करें M तक, ठीक है। ये आप रीड करेंगे एक बारी। नाउ अब हम बात करते हैं क्या जो हमने अभी पार्ट A पढ़ा वो तो था, हाँ मटेरियल था, नेसेसरी था, मटेरियल था तो नेसेसरी था डिस्क्लोजर। अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम पार्ट B, जहाँ पे वो बोल रहे हैं इवेंट विच शैल बी डिस्क्लोज्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ मटीरियलिटी रेफर्ड इन सबसेक्शन 34(4). अब यहाँ पे क्या है, मटीरियलिटी आपको थोड़ा सा ठीक है चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। कमेंसमेंट or any postponement in the date of commencement of production of commercial operations, तो अगर आपने कमर्शियल कोई भी प्रोडक्शन चालू करना था, आपने किया नहीं, या फिर पोस्टपोन कर रहे हो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटीरियलिटी की, अगर जैसे 180 विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन जब आपको मिल गया, उसके बाद भी 180 डेज तक नहीं करा आपने, तो फिर वो थोड़ा सा मटीरियल हो जाता है कि भाई काम क्यों नहीं चालू हो रहा है जब आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल चुका है तब भी। तो ये वाली जो जितने भी ये पॉइंट्स होंगे ना, ये ऑब्जेक्टिविटी पे मीन्स बेस्ड ऑन द सिचुएशंस हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में कब ये मटेरियल हो सकता है, कब इमटेरियल हो सकता है, दिस यू हैव टू मेक अ कॉल नाउ. Changes in the general character or nature of the business brought about by arrangement of strategic technical manufacturing or making tie-ups, adoption of new lines of businesses, or the closure of operations of any unit, divisions, or etc. Then capacity additions of products, a product launch, awarding, bagging, receiving, amendment or termination of awarded, bagged order, contract not in the normal course of business, agreement via loans, agreement as borrower, or any other agreement which are binding and not in the normal course of business, revisions or amendments and termination thereof, disruption of operation of any one or more of the units of the listed entity due to natural calamity, earthquake, flood, fire, force measure, and or event of such strikes like lockouts etc. देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, ओके यहाँ पे देखो डिसरप्शन, ये वाला पॉइंट बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स मेजर क्या होते हैं, जो ऐसी सिचुएशंस जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, है ना, सिचुएशंस विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल. तो अगर कोई भी ऐसा डिसरप्शंस हो जाता है, तो कोई ऐसा मेजर यूनिट ऑपरेशन ऑफ यूनिट हैम्पर हो रहा है, तो वो आपको और वो हमारे से हाथ के बाहर भी, हमारे कंट्रोल के बाहर भी है वो सिचुएशन, तो वो आपको देखना है कि वो डिस्क्लोजर उसका कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है. देखो यहाँ पे एक पॉइंट था ना, ओके आई एम गेटिंग इट आउट कि ये वाला एक पॉइंट था, ये awarding, bagging, receiving, amendments or termination of awards, bagged, ordered contracts not in the normal course of business. देखो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की एक्टिविटी थी जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं था, हमारा बिजनेस उसमें इन्वॉल्व नहीं था, हाँ, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्टिविटी नहीं थी, तो आपको देखना है कि वो मटेरियल हो सकता है ना रिपोर्टिंग पर्पस से. Effects arising out of change in the regulation framework applicable to the listed entity. अगर आपने कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे चेंजेस किए, उसका कोई इफेक्ट अराइज हो रहा है, तो उसका आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट इज लिटिगेशंस, डिस्प्यूट्स, रेगुलेशन एक्शंस विथ इम्पैक्ट. तो कोई भी लीगल एक्शंस हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. मटीरियल हो सकता है, मटीरियलिटी आ सकती है. फ्रॉड डिफॉल्ट्स बाय द डायरेक्टर्स, उसमें मटीरियलिटी आ सकती है. ऑप्शंस टू परचेज सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग ESOPs एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम्स, इसमें भी आ सकती है. हाँ, फिर गिविंग ऑफ गारंटीज और इंडेमनिटीज और बिकमिंग अ श्योरिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी. तो अगर आप कहीं के गारंटर बन रहे हैं, इंडेमनीफाई कर रहे हैं या किसी को, या थर्ड पार्टी श्योरिटी दे रहे हैं, तो भी आपको मटीरियलिटी देखनी पड़ेगी. ग्रांटिंग, विड्रॉल, सरेंडर, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ की लाइसेंसेस और रेगुलेटरी अप्रूवल, ये भी मटीरियल है. हाँ, ये सब एक रीड थ्रू थिंग्स हैं आई गेस, नो गाइस. नाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस, ये सारा ना गो थ्रू थिंग है कि क्या क्या होना चाहिए. एक बार आप रीड करेंगे ना कि इसमें क्या बताएंगे कि ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड, ऑथराइजेशन बाय बोर्ड में क्या होगा कि अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा की मैनेजरियल पर्सन के लिए कोई चीज़ मटेरियल है, वो इन्फॉर्मेशन, तो आप इन्फॉर्मेशन को मटेरियल समझिए और उससे रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स दीजिए. फिर इधर पे जो है डिस्क्लोजर्स इन द वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है. A listed entity shall disclose on its website all such events information which has been disclosed to stock exchange under this regulation, and such disclosures shall be hosted on the website
of the listed entity for a minimum period of 5 years and thereafter as per the archival policy of the listed entity. तो देखो ये वेबसाइट से रिलेटेड है, इधर आप मार्क कर सकते हैं डिस्क्लोजर्स ऑफ वेबसाइट से रिलेटेड है कि मिनिमम 5 साल तक के लिए आपको इसको रखना है, उसके बाद जैसी भी आपकी आर्काइवल पॉलिसी होगी उस हिसाब से काम करिएगा, ठीक है. फिर डिस्क्लोजर्स की बात आती है, जस्ट रीड थ्रू दीज डिस्क्लोजर्स, नथिंग रेलिवेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 31, होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स पैटर्न. तो यहाँ पे क्या करना है कि submit to the stock exchange a statement showing holding of securities and shareholder pattern separately for each class of securities in the format specified by the securities within following timeline. अब कब जब 1 day prior to listing its securities on the stock exchange, on quarterly basis within 21 days from the end of each quarter, within 10 days of any capital restructuring of a listed entity resulting in change exceeding 2% of the total paid up share capital, then shall ensure that 100% of shareholding of promoter and promoter group in a dematerialized form, and same is maintained on a continuous basis. गाइज आई थिंक हम 31 रेगुलेशन 31 से नेक्स्ट लेक्चर में देते हैं, क्योंकि ये एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज 31 से ना बहुत सारे इसके सब पार्ट्स हैं, 31 के सब पार्ट्स 7 8 पार्ट्स हैं आई गेस, तो इट विल टेक टाइम एंड 31 इज़ द बिट इम्पॉर्टेंट. रादर 31 के बाद जो भी है 31 34 एनुअल रिपोर्ट, फिर 38 भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो आई गेस वील ब्रेक हियर and from 31 onwards we'll take up in the next sessions. So thank you guys.